Hi everyone, good morning, and we are here with a passage of the Hindu editorial. So, this editorial will surely enhance your vocabulary, it will give you more about the current happenings, and the most important part is how you read a passage, how you maintain your readability. सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सबसे पहले अपना वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखते हुए आपको इस पैसेज को रीड करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है और फिर जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे एग्नी वर्ड आ रहा है एंड देन सेटबैक वर्ड आ रहा है, तो इन सभी वर्ड्स के बारे में हम सीखेंगे. राइट, प्रोनाउंसिएशन कैसे हमें करना है, इट इज़ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी. सो ऐसे ही पूरे डिस्कशन के लिए आप पूरे वीडियो को वॉच करिए और अपने इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को बेहतर करिए. आई थिंक आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, सो अपना आप एक्सपीरियंस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. एग्री ऑफ एग्जिट ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनकर. Jagdeep Dhankar's resignation as Vice President is a setback for parliamentary democracy. The abrupt decision by Jagdeep Dhankar to resign as the Vice President of India raises several questions about the relationship between the executive and parliament. Also in focus are the dynamics within the ruling BJP. The Vice President is also the chairman of the Rajya Sabha. Mr. Dhankar is the first vice president in the history of the republic to resign this way. Some of his predecessors who resigned before completing their term had the reason of moving on to get elected as president of India. While his resignation letter cites health reasons, it is clear that his decision was driven by other factors which remain speculative at this point. What is evident is that some of the developments on Monday had snowballed into a situation in which Mr. Dhankar found exit to be the only viable path. He was active in his duties as the chair on the first day of the monsoon session of Parliament, and his office had also announced his public engagements for the week. After a health incident earlier this year, Mr. Dhankar had returned to active public life, but nothing that had happened on Monday, July 21st, 2025, necessitated a health-related decision. However, his decisions and statements on Monday citing parliamentary rules were in conflict with the script that the government had prepared for the removal of a Delhi High Court judge on charges of alleged corruption. His relationship with the executive had been soaring for a while, but his position on judicial accountability and the relative roles of the Lok Sabha and the Rajya Sabha in seeking it turned out to be an inflection point, as it appears. Furthermore, Mr. Dhankar's conduct as chair of the Rajya Sabha during the last 3 years has been controversial. His partisan approach led to a motion for his removal by the opposition, another first in parliamentary history. He questioned the inclusion of the words secular and socialist in the constitution, publicly aligning with the RSS call for a debate on them. He has been a champion of parliamentary supremacy in the context of judicial independence and vocal about corruption in the judiciary. While seeking to uphold the supremacy of parliament and to draw a line of acceptable conduct for the judiciary, he entertained an opposition move to impeach Justice Shekhar Kumar Yadav of the Allahabad High Court, who had made communally charged remarks in public. Mr. Dhankar acknowledged receiving a motion signed by over 50 MPs for Justice Yadav's removal and said he was verifying their signatures. He had also accepted an opposition motion for the removal of Delhi judge. Mr. Dhankar had few points other than what he did going by the rules. But what put him on a collision course with the government? His resignation weakens India's parliamentary democracy. So guys, this was all about this passage. सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये दिखा होगा कि इस तरह से रीड करने से आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट. आइए अब हम नोट डाउन कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को
जो हमारी वोकैबुलरी इन्हांसमेंट के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने दिख रहा है दैट इज एग्नी, राइट। सो एग्नी का मतलब होता है कष्ट, व्यथा, मतलब किसी चीज़ में जो आपको एक दर्द होता है उस काम को करते हुए। अब वास्तव में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उनका जो भी रीज़न हो, बट किसी पोजीशन को छोड़ते हुए कष्ट तो होता ही है। सो एगनी इज नाउन जिसका मतलब है पेन, एंड एगनी को हम लोग एज से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं कि जब एज काफ़ी हो जाती है तो ऑब्वियसली एगनी बिगिंस। तो यहाँ पे एगनी ऑफ एग्जिट, जो बाहर जाने का कष्ट है, अब चूंकि रेजिग्नेशन दिया है तो ऑब्वियसली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर कर रहे थे वो कोई और बियर करेगा, तो बुरा तो लगता ही है, आखिरकार दिल है एंड ह्यूमन बींग्स का एक कॉमन नेचर होता है। ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ जगदीप धनकर, और उनके रेजिग्नेशन से जो उनके फैन फॉलोइंग है उनको भी एग्नी महसूस हो रही होगी क्योंकि वो जा रहे हैं। जगदीप धनकर्स रेजिग्नेशन एज वाइस प्रेसिडेंट इज अ सेटबैक। ये वर्ड काफ़ी हमारे कम्युनिकेशन में भी आता है, सेटबैक, और आपने इसे मल्टीपल टाइम सुना होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक एक सेंटेंस इस सेटबैक पे अपने अपने शेयर करें। कभी आपकी लाइफ में कोई सेटबैक रहा है क्या, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने हाईलाइट किया कि डेमोक्रेसी बोलेंगे, डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग इसमें प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो मैं इस वर्ड को भी मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि आपने आज की वीडियो में क्या नया सीखा। दिस इज डेमोक्रेसी, राइट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोनाउंसिएशन and the best way to pronounce this word is democracy, right? So this is what the junction here, plus symbol is adding these two words, democracy and setback। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी डिफ़िकल्टीज होती हैं या आपकी फेलियर्स होते हैं, इसे हम लोग फेलियर कहते हैं, राइट, असफलताएं। सेट बैक, जो आपको पीछे जाकर के सेट कर दे, वही क्या है, सेट बैक है। आइए आगे बढ़ते हैं। The abrupt decision by Jagdeep Dhankar to resign as the Vice President of India raises several questions about the relationship between the executive। इसके pronunciation में भी बहुत गलतियां होती हैं, कई लोग इसे एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये भी pronunciation वाला वर्ड है, इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जेग और एग्जेक के बाद सीधे टिव, एग्जीक्यूटिव। तो ये भी पी फॉर प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको ध्यान रखना है। फिलहाल ये वर्ड एग्जीक्यूट से बना है और एग्जीक्यूट की तरीके ही बोला जाता है, एग्जीक्यूट, लेट अस एग्जीक्यूट इट, ठीक है। और एग्जीक्यूशन इसका नाउन है, ये वैसे ही बोला जाता है। तो लेकिन ये जो इसका बन रहा है एग्जीक्यूटिव, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है। एग्जीक्यूट माने किसी चीज़ को रन करना और एग्जीक्यूशन माने वो रनिंग प्रोसेस, ठीक है। एग्जीक्यूशन वर्ड इसका नाउन है और एग्जीक्यूटिव एज अ नाउन भी यूज होता है क्योंकि ही इज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। तो जो उनका एब्रप्ट डिसीजन है, एब्रप्ट का मतलब कोई स्मूथनेस नहीं, एकदम अचानक से, सडन, राइट। सो दैट इज द एब्रप्ट डिसीजन। अचानक से जो उन्होंने डिसीजन ले लिया है दैट इज एब्रप्ट डिसीजन, वो काफ़ी क्वेश्चंस खड़े कर रहा है, ठीक है। सो एब्रप्ट वर्ड भी आपकी हेल्प के लिए मैं इसको नोट कर देता हूँ। एब्रप्ट मीन्स सडन, सो दिस इज सडन। एब्रप्ट कम्स एज एन एडजेक्टिव एंड दिस मीन्स सडन। एंड अब रप्ट, एकदम से रप्ट कर देना, रपटा मार देना, ठीक है। इसको रपटा से रिलेट कर सकते हैं, अचानक से कोई किसी को रपटा मार दे तो भाई एब्रप्ट तो लगता ही है, राइट। सो द एब्रप्ट डिसीजन बाय जगदीप धनखड़ टू रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजेस सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है और पार्लियामेंट बॉडी है, उनके बीच में कैसा रिश्ता रहा है जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ रहा है। ये जो एब्रप्ट डिसीजन है कई सारे सवाल खड़े कर देता है। ऑल्सो इन फोकस आर द डायनेमिक्स विद इन द रूलिंग बीजेपी। अभी जो बीजेपी सरकार, रूलिंग बीजेपी सरकार है, उसकी जो डायनेमिक्स हैं,
ठीक है, क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं वो भी अब चर्चा में आ रहे हैं, वो भी इन फोकस हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। एंड मिस्टर धनखड़ इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द रिपब्लिक। पूरे गणतंत्र की इतिहास में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर धनखड़, जिन्होंने इस तरह से रिजाइन किया है। सम ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे पहले के जो प्रीडिसेसर्स रहे हैं, प्रीडिसेसर्स माने पूर्व में जो कार्यरत रहे हैं, राइट। और इस वर्ड को याद करने का बेहद अच्छा सा तरीका है, प्री वर्ड आ रहा है तो प्री का मतलब ही होता है पहले, एंड प्री डिसेसर्स, डिसेसर वर्ड आपका अलग से आ रहा है, प्री डिसेसर। सो प्री डिसेसर को हम लोग नोट कर लेते हैं, पूर्ववर्ती इसे हिंदी में कहते हैं, पहले जो कार्य करने वाले हैं। सो इट्स स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्री and this is decessor, predecessor. So predecessor means former official, हिंदी में जिसे कहते हैं पूर्ववर्ती, राइट। एंड प्री प्लस डिसेसर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज इनफ टू लर्न दिस वर्ड, राइट, प्रीडिसेसर। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हु रिजाइन्ड बिफोर completing their term had the reason of moving on to get elected as president of India। उन लोगों का कारण था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहे थे, भारत के राष्ट्रपति बन रहे थे, आगे उनका प्रमोशन हो रहा था, इसलिए उन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि रिजाइन करके ही आगे हम नया डेजिग्नेशन लेते हैं। वाइल हिज रेजिग्नेशन लेटर साइट्स हेल्थ रीजन, साइट्स माने प्रकाश में लाना, जबकि उनका रेजिग्नेशन लेटर उनके हेल्थ रीजंस को प्रकाश में ला रहा है। इट इज़ क्लियर दैट, ये साफ है कि उनका डिसीजन कुछ अदर फैक्टर्स से भी प्रभावित है, अदर फैक्टर्स के द्वारा ड्रिवन है, विच रिमेन स्पेक्यूलेटिव एट दिस पॉइंट, और जो कि अभी भी बना हुआ है स्पेक्यूलेटिव। तो आपने स्पेक्टेटर वर्ड तो पढ़ा ही होगा, एंड दिस इज स्पेक्यूलेटिव, सो एडजेक्टिव है, एंड स्पेक्यूलेट से बना हुआ है, स्पेक्यूलेट वर्ब होता है। तो स्पेक्यूलेटिव इज थॉटफुल, काफ़ी चिंतनशील, जिस पे लोगों की चर्चा हो रही है, क्यों ऐसा उन्होंने किया, स्पेक्यूलेटिव, राइट। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव, और इसका मतलब भी होता है थॉटफुल, कि विचारशील, जिसे हिंदी में कहते हैं विचारशील। तो स्पेक से आप इसे कनेक्ट कर दीजिए कि जब चश्मा आप उतार करके किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको उसके बारे में ज़रूर विचार होगा। What is evident is that some of the developments on Monday had snowballed into a situation. What is evident? Evident माने जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष दिख रही हो। What is evident? क्या evident है जो चीज़ आपको दिख रही है? Some of the developments on Monday, जो कि कुछ developments हुए थे, कुछ आगे कार्यवाही आगे बढ़ी थी, and snowballed into a situation, उसने एक सिचुएशन में काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत तेज़ी से बढ़ जाना या फैल जाना। तो बेसिकली स्नोबॉल का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना। सो दिस वर्ड ऑल्सो इज नोटेड डाउन, दिस इज स्नोबॉल, दिस इज कमिंग एज अ वर्ब, दिस मीन्स टू फासन समथिंग रैपिडली, राइट। फासन लगा हुआ है तो रैपिडली की ज़रूरत नहीं है। एंड स्नो बॉल, आपको पता ही है स्नो में बॉल काफ़ी तेज़ी से फिसलती है। वो एक सिचुएशन में लाए इन विच मिस्टर धनखड़ फाउंड एग्जिट टू बी द ओनली वायबल पाथ, जिसमें मिस्टर धनखड़ ने ये पाया कि इधर से निकल जाना ही एक वायबल पाथ है, मतलब एक सही तरीका है। वायबिलिटी का मतलब है कि जो चीज़ पॉसिबल हो, वायबल, वायबिलिटी, वायबल एडजेक्टिव के तरीके यूज हो रहा है और वायबिलिटी नाउन के तरीके यूज होता है। तो वायबल का मतलब है डुएबल, मतलब जो चीज़ करने योग्य है, राइट, जो चीज़ मेरे से हो सकती है, जो चीज़ पॉसिबल है, जिसे हम कहते हैं फीजिबल है, ये चीज़ फीजिबल है, डुएबल है, तो उसी कहते हैं वायबल, और इसी से बना है वायबिलिटी। तो ये दोनों शब्द आपके लिए यूजफुल हैं। ही वॉज एक्टिव इन हिज ड्यूटीज एज द चेयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पहले दिन मानसून सेशन में वो काफ़ी एक्टिव थे अपनी ड्यूटीज़ को लेकर के। एंड हिज ऑफिस हैड ऑल्सो अनाउंस्ड हिज पब्लिक एंगेजमेंट्स फॉर दिस वीक।
और उनके ऑफिस से ये भी खबर थी कि इस बार वो पब्लिक इंगेजमेंट्स में थोड़े बिजी रहेंगे। आफ्टर हेल्थ इंसिडेंट अर्लियर दिस ईयर, मिस्टर धनखड़ हैड रिटर्न टू एक्टिव पब्लिक लाइफ, और मिस्टर धनखड़ एक्टिव पब्लिक लाइफ में वापस आ गए थे अपने हेल्थ इश्यूज के बाद, और जो भी अब रिकवर करके वो मतलब पब्लिक डीलिंग्स में काफ़ी एक्टिव थे। बट नथिंग हैड हैपेंड ऑन मंडे जुलाई 21, 2025। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मंडे को। नेसेसिएटेड, देखिए नेसेसिटी से बन गया है नेसेसिएटेड, तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेसेसिटी नाउन के रूप में यूज होता है, और यहाँ पे नेसेसिएट यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेसेसरी, नेसेसिटी, नेसेसिएट, तो किसी चीज़ को अनिवार्य बना देना, जैसे ये वर्ब के रूप में आ रहा है। ये यूसेज काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग भी कमेंट करके इन पे सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा। टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना, एंड ये वर्ड नेसेसरी से ही कनेक्टेड है, तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। A health related decision, however, his decision and statements on Monday citing माने इस चीज को प्रकाश में लाना, parliamentary rules were in conflict, काफी conflict में थे, with the script that the government had prepared for the removal of a Delhi High Court judge on charges of alleged corruption. करप्शन के कारण जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं उनको हटाने की बात चल रही थी, तो वो एक गवर्नमेंट की स्क्रिप्ट डिस्कशन में आई, जिसकी वो भी एक रीज़न मानी जा रही है कि उसकी वजह से उनको थोड़ा ऐसा लगा हो, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। एंड हिज रिलेशनशिप विद द एग्जीक्यूटिव हैड बीन सॉरिंग फॉर अ वाइल, उनकी जो एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेशनशिप रही है वो काफ़ी सॉरिंग रही है कुछ समय तक। सॉरिंग का मतलब खट्टा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा खटास रही है। But his position on judicial accountability and the relative roles of the Lok Sabha and Rajya Sabha in seeking it turned out to be an inflection point. और उनका जो रोल रहा है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रही है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के, वो काफ़ी अच्छा रहा है एज इट अपीयर्स। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस पैसेज। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस पैसेज का जो जिस्ट है, जो स्किमिंग है, वो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, और ये वोकैबुलरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही और वीडियोस को वॉच करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप टेलीग्राम में हमारे वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन बैच अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए, और बेहतरीन दिशा दे सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने वर्क प्रोफाइल को। सो आपका वेलकम है हमारे स्पोकन इंग्लिश बैच में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल एट दिस नंबर 9936804420। Here you get basic grammar, vocabulary building, pronunciation and accent training, and you get a certificate as well. And if you're looking for IT courses, you can subscribe our channel, that is Inspiron Technologies, and you can get the IT courses like PHP, Java, Python, and you can make your career successful in this. For more information, call at our official contact number and get more details. Thank you all. Jai Hind. Bye-bye.